The Congress's last-minute decision on Amethi and Roy Bareli has sent ripples in the opposition camp and the BJP. Rahul Gandhi, who is expected to make an all-out bid to win back Amethi, has been announced as the party candidate from Roy Bareli, the seat vacated recently by his mother, Sonia Gandhi, when she moved to the Rajya Sabha. Now in Amethi, the family bastion, which defected to the BJP 5 years ago, the Congress will be represented by Kishori Lal Sharma, a long-time loyalist of the Gandhi family. Priyanka Gandhi Vadra could not be convinced to contest from Roy Bareli, which she had nursed for over a decade on her mother's behalf. The Amethi seat has been represented by Rahul Gandhi from 2004 and he remained the Member of Parliament from there for 3 consecutive terms till 2019. He currently represents Kerala's Wayanad constituency where he has contested this time also. Now, there are some reactions that's come into this story so far, both from the opposition as well as from the alliance in the Congress party. Let's listen in to what they have to say with this interesting turn of events. देखिए क्या करना है, गांधी परिवार अब जहां से हारती है वहां फिर दोबारा नहीं जाती। अब जैसे अमेठी से हार गया, राहुल गांधी हार गए, अब अमेठी छोड़ दिए। इस बार रायबरेली भी हारेंगे, वहां छोड़ देंगे। मैं तो पहले ही कहा कि बहादुर जफर शाह मुगलिया सल्तनत के अंतिम बादशाह थे, तो उसी तरह से रायबरेली भी ये गांधी फैमिली का ये अंतिम बादशाह। देखिए तो ओवैसी जी के पास में शब्द की कमी है, किसी को सम्मान देना नहीं जानते। मोदी तुमको भी हराएंगे, अमित शाह तुमको भी हराएंगे, ये अहंकार है। जो व्यक्ति, मुझे रिकॉर्ड दिखा दीजिए कि लोकसभा के अंदर राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत में खड़ा हो, वो खड़ा में कहीं रिकॉर्ड नहीं है, वो रहते नहीं भाग जाते। जो देश के राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में नहीं रहता, वो अपने को वफादार की सूची में नाम बता रहे हैं। राहुल गांधी जी वायनाड से बुरी तरह से चुनाव हार रहे हैं, इसीलिए आज वो अमेठी को छोड़कर अब रायबरेली से आज पर्चा भरने जा रहे हैं। हालात इतने बुरे हैं कांग्रेस के कि अमेठी सीट जो उनकी पारिवारिक सीट थी उस पर कोई कार्यकर्ता चुनाव तक लड़ने को तैयार नहीं है और पंजाब से केएल शर्मा जी को चुनाव लड़ने को लाया गया है। मैं राहुल गांधी जी को बताना चाहता हूं, तुम देश संभालने की बात करते हो, ना तुम अमेठी संभाल पाए, ना तुम वायनाड संभाल पाए, अब रायबरेली भी तुम इसी तरह ही खत्म करोगे। वहां के लोग भी तुम्हें बड़े मार्जिन से हराएंगे, क्योंकि जो आदमी अपना एक कॉन्स्टिट्यूएंसी ना संभाल सके उसको अधिकार नहीं है देश की बात करने का भी। आपकी कांग्रेस की रायबरेली से भी लाखों वोट से हार होगी और तुम्हारा राजनीतिक करियर अब रायबरेली के लोग खत्म करेंगे। Well, those were just some of the reactions that have come in so far with regards to the 2 contestants now being fielded from Amethi, that is Kishori Lal Sharma and Rahul Gandhi from Roy Bareli. Now, if we look at who is KL Sharma, KL Sharma hails from Punjab's Ludhiana and he has been a long-time loyalist of the Gandhi family. Now, in fact, if we speak about who he is, he has been fielded to contest from Amethi this particular election season, a seat that was being speculated on for a long time, and the BJP now has gone all out, going with the same narrative that had been put forth by Smriti Irani back in 2019, that once Rahul Gandhi has left Amethi, he is not going to come back, and in fact the situation seems so. So as we speak of KL Sharma, he had worked with the former Prime Minister Rajiv Gandhi since 1983 and he has ever since been a loyalist to the Gandhi family, and later on in fact he used to manage Roy Bareli on behalf of Sonia Gandhi. This is the particular details we have with regards to Kishori Lal Sharma, long time association that he's had with the Gandhi family. Now, Priyanka Gandhi used to represent Sonia Gandhi on the grounds in Roy Bareli. So
there is a question with regards to why is it that Priyanka Gandhi Vadra has not been fielded from that seat, and it is instead Rahul Gandhi who's now been fielded from it. Now, if we look at the vote share that we are showing you on your screens right now, we'll have a quick look of how the things had panned out during 2019. The vote percentage that Smriti Irani had received was 49.7%, 4,68,514 votes. And Rahul Gandhi had received 43.9%, so that comes down to 4,13,394. This was the situation back in 2019. And from what it seems and what's been said so far about Amethi now, with this decision coming to the fore, that the Congress has handed Amethi's seat to Smriti Irani on a platter at this point. This is the particular information that we have. Now, but if we look at Amethi's battle, historically, Amethi has been Gandhi's family bastion. Congress has won Amethi 16 times so far, among which Rahul Gandhi was there from 2004, and consecutively he had come to win 3 terms. In 2019 only it had happened that it was Smriti Irani who took over. In 2004, in fact, Rahul had defeated BSP's Chandra Prakash Mishra by almost 3 lakh votes. And 2009, later on, Rahul received 32.42% of total votes and had defeated BSP's Ashish Shukla back then. Rahul Gandhi had remained Amethi's MP till 2019. And 2019, Smriti Irani defeated Rahul Gandhi by 55,120 votes, as we just brought to you the vote share that was received by both the parties. And this is the particular situation now in Amethi and Rai Bareli. Only time will now tell how things pan out for Rai Bareli and Amethi, though the predictions on Amethi seem to be that it is Smriti Irani who has clearly won the elections already from that seat. Let's listen into some of these reactions that's also come into the story so far. सभी ने पर्चा भरा है, इस बार वायनाड में भी जमीन खिसक गई है और इसलिए वहां से भी भागने की तैयारी कर रहे हैं। तो अब वो रायबरेली में जमीन ढूंढ रहे हैं, तो रायबरेली की जमीन तो पहले ही खिसक गई है, इसलिए कहीं से भी यहाँ इस बार राहुल गांधी की हार सुनिश्चित है। जीतू पटवारी ने जिस प्रकार से हमारी बहन इमरती देवी के लिए इन शब्दों का उपयोग किया है, ये साबित करता है कांग्रेस की महिलाओं के प्रति मानसिकता क्या है। ये शुद्ध महिला विरोधी ही नहीं, महिलाओं के प्रति किस प्रकार से असम्मानजनक और इस प्रकार की अभद्र भाषा का उपयोग करना, इसका जवाब जीतू पटवारी को मिलेगा मध्य प्रदेश के अंदर। और मध्य प्रदेश के अंदर पूरी मातृशक्ति, माताएं, बहनें, बेटियां, आज जिन शब्दों का उपयोग बहन के लिए आपने किया है, उसका जवाब तो देंगे ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। इसका जवाब जीतू पटवारी को देना पड़ेगा। इनके खिलाफ एफआईआर भी कराएंगे और इसके खिलाफ जो हो सकता है मातृशक्ति भी तैयारी के साथ मैदान में उतरी है, इनका जवाब इन्हें देना। मैं सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी का आभारी हूं, जिन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेवारी के काबिल समझा। मैं आदरणीय खड़गे जी का, आदरणीय सोनिया जी का, आदरणीय राहुल जी का, आदरणीय प्रियंका जी का तहे दिल से आभारी रहूँगा, क्योंकि मैंने 40 साल इस क्षेत्र की सेवा करी है। ठीक है, आज भी कर रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ। और मेरे को बहुत खुशी की बात है कि इतने छोटे से कार्यकर्ता को उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी। मैं आभारी हूँ उनका। डरो मत कहते कहते अब अमेठी से लड़ो मत। आज जिस प्रकार से राहुल गांधी ने अमेठी को छोड़ दिया है और कांग्रेस पार्टी ने बताया है कि प्रथम परिवार के किसी भी सदस्य में ये दम नहीं है कि वो अमेठी से स्मृति ईरानी जी के मुकाबले में लड़े, तो एक बात स्पष्ट है कि अब कांग्रेस पार्टी ने भी स्वीकार लिया है कि अब की बार 400 पार एनडीए के लिए और उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीट आने वाली है। क्योंकि जो 5 वर्षों में अमेठी में स्मृति ईरानी जी ने मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में काम किया है, वो 50 वर्षों तक राहुल गांधी का परिवार अमेठी की जनता के लिए नहीं कर पाए। और इसीलिए जब अमेठी की जनता ने रिजेक्ट कर दिया तो राहुल गांधी जी वायनाड चले गए। अब वायनाड ने भी रिजेक्ट कर दिया है तो राहुल गांधी जो तथाकथित सेफ सीट मानकर रायबरेली आए हैं, तो रायबरेली के लोग भी इस बार ऐसे सांसद को चुनेंगे जो उनके बीच रहेगा, ना कि जो विदेशी दौरे पर निकल जाएगा।
मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तीसरी पारी को लेकर के जिस ढंग से वातावरण बना है, यही कारण है कि कांग्रेस पहले तो तय नहीं कर पा रही थी कि क्या करना चाहिए। पिछली बार अमेठी से हार करके राहुल गांधी केरल तक भागे थे, वायनाड से वहाँ से हार की आशंका मान करके पहले अमेठी का मन बनाते रहे। लेकिन स्मृति जी ने जो 5 साल काम किया है, 5 विधानसभाओं में 4 में जमानतें जब्त कराई पिछले चुनाव में, और जिस ढंग से मैं अभी वहाँ दौरा करके आया हूँ, नामांकन भरने में मैं स्वयं था। यूपी का माहौल मोदी में हो चुका और पुराना रिकॉर्ड भी हम तोड़ने जा रहे हैं। ऐसे अमेठी के बजाय अब वो रायबरेली से जा रहे हैं, तो रायबरेली की जनता भी उनका इंतजार कर रही है कि कांग्रेस ने जितने विकास में अवरोध पैदा किए, जितनी मोदी जी के बारे में हल्की बातें कही, एक एक बातों का हिसाब कांग्रेस को देना पड़ेगा। और निश्चित हार रायबरेली से भी राहुल गांधी की होने वाली है। और प्रियंका जी ने तो पहले हार के पहले ही अपनी एक तरह से इसको हमारी भाषा में कहते हैं कि रण के पहले रण छोड़ हो गई, तो किसका क्या कर सकते हैं। फैसले हुए हैं, सब खुश हैं। राहुल चुनाव लड़े रायबरेली से, कार्यकर्ता में उत्साह का संचार हो। लड़ाई देख रहे हैं, दोनों चुनाव जीतेंगे बहुत भारी बहुमत से। रानी कह रही है राहुल गांधी भाग गए। वो कौन है दिखाने वाले, वो यही कहेंगे और क्या कहेंगे, वो खुद घबराई हुई है। राहुल गांधी जी कहते थे डरो मत, डरो मत, डरो मत। अब डर डर कर कभी अमेठी से वायनाड, कभी वायनाड से रायबरेली, ये दिखाता है कि हार का डर कहां कहां लेकर जा रहा है। और डर तो इतना कि एक साथ कहीं दोनों ही ना हार जाएं, तो एक ही सीट से लड़ रहे हैं। लेकिन दूसरा मुझे कहना है, न्याय नहीं दिला पाए अपनी बहन को भी, क्योंकि एक तरफ रॉबर्ट वाड्रा जी भी टिकट मांगते थे, दूसरी तरफ कांग्रेस की मांग प्रियंका जी के लिए भी थी, लेकिन उनकी लिस्ट में कहीं बहन का नाम नहीं आया है। ये अपने आप में दिखाता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कांग्रेस पार्टी में चल रहा है, और ये अब देश के सामने खुलकर बात आ गई है। जल्दी में हूँ क्योंकि मुझे रायबरेली भैया के नामांकन के लिए जाना है। आप सबको मालूम है कि किशोरी जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। आप इनको मेरे ख्याल से आप शायद 35 या 40 सालों से जानते हैं। अमेठी की गली गली जानते हैं, गांव गांव जानते हैं, हर कार्यकर्ता को जानते हैं, पहचानते हैं, और यहाँ की जो समस्याएं हैं, यहाँ की जो मुश्किलें हैं, उनको अच्छी तरह से जानते हैं। इन्होंने लगातार 40 सालों के लिए आपकी सेवा की है। मैंने खुद आंखों से देखा, मैं खुद यहाँ पे आपके साथ मैंने खुद काम किया, और इस चुनाव में भी मैं इनके साथ कंधे से कंधा लगाकर चुनाव लड़वाएंगे। और आपसे ये उम्मीद रखती हूँ, मैं आपसे ये उम्मीद रखती हूँ कि आप भी हमारे साथ कंधे से कंधा लगाकर इस चुनाव को लड़वाएंगे और किशोरी जी को जिताएंगे।